Hello student, welcome to SS Pharma. This channel is one stop solution for all pharma concepts. My name is Shubha. Now today we will learn about cosmetic science. In this subject we will discuss about cosmetic cosmeceuticals, quasi drug, herbal cosmetics, cosmetic excipient, skin care, oral cavity, formulation and mechanism of cosmeceuticals, cosmetic evaluation and so on. So let's start. So first of all, what is cosmetics? Okay, cosmetic क्या होता है? Any material used for beautification or improvement of appearance is known as cosmetics. Means कोई भी मटेरियल या कुछ भी जो हम यूज करते हैं किसके लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए या हमारी जो अपीयरेंस है इसको इम्प्रूव करने के लिए कोई भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको हम कॉस्मेटिक्स बोलते हैं. ओके, सो इसमें क्या कह रहा है कि एनी मटेरियल यूज फॉर ब्यूटिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ अपीयरेंस इज नोन एज कॉस्मेटिक्स. ओके, जो भी मटेरियल है या कोई भी मटेरियल जो कि हम किसके लिए यूज करते हैं, अपनी जो अपीयरेंस है हमारी उसको इम्प्रूव करने के लिए एंड ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक्स. ओके, कॉस्मेटिक होता क्या है, एक कंस्टिट्यूटेड मिक्सचर होता है किसका, केमिकल कंपाउंड का, जो कि डेराइव्ड होता है फ्रॉम नेचुरल सोर्स और सिंथेटिकली. ओके, सो कॉस्मेटिक का कंस्टिट्यूटेड मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड derived from either natural source or synthetically created one. Now next is definition of a cosmetic as per Indian regulation. हमारे जो बीफार्म एचएम में कॉस्मेटिक साइंस है उसके सिलेबस में क्या है कि जो डिफिनेशन है कॉस्मेटिक का उससे हमें टू टाइप से डिफाइन करना है. ठीक है, एक तो है एज पर इंडियन रेगुलेशन एंड सेकेंड इज एज पर ईयू रेगुलेशन. ओके, so first is definition of a cosmetic as per Indian regulation. So cosmetic means any article intended to be rubbed, poured, sprinkled or spray on or introduced into human body or any part thereof for cleansing, beautifying, promoting attractiveness, altering the appearance and include any article intended for use. Means कि कोई भी आर्टिकल जो कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं बाय रब, पोर, स्प्रिंकल और स्प्रे से हमारे ह्यूमन बॉडी पर या एनी पार्ट, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ स्किन पे जब हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, फॉर क्लिनजिंग, ब्यूटिफाइंग एंड प्रमोटिंग अट्रैक्टिवनेस एंड अल्टरिंग द अपीयरेंस. ओके, कोई भी मटेरियल और आर्टिकल जो कि हम ह्यूमन बॉडी पर यूज हो रहा है किसके लिए, फॉर क्लिनजिंग के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए और जो हमारी अट्रैक्टिवनेस है उसको प्रमोट करने के लिए या जो अपीयरेंस है उसको अल्टर कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक्स. सो जो कॉस्मेटिक है डिफाइन करना है एज पर इंडियन रेगुलेशन. तो ये है कॉस्मेटिक मीन्स एनी आर्टिकल intended to be rub, pour, sprinkle or spray on or introduced into human body or any part thereof for cleansing, beautifying, promoting attractiveness, altering the appearance and include any article intended for use. Now next is definition of a cosmetic as per EU regulation. Okay, so a cosmetic product is any substance or mixture intended to be placed in contact with the external part of the human body or with the teeth and mucous membrane or oral cavity like toothpaste, tooth powder, mouthwash, with a view exclusively or mainly to cleaning them,
perfuming them, changing their appearance, promoting them, keeping them in good condition, or correcting body odor. Okay, so क्या है definition? Cosmetic as per EU regulation कि a cosmetic product is any substance or mixture intended to be placed in contact with the external part of the human body or with the teeth and mucous membrane or oral cavity like toothpaste, tooth powder, mouthwash with a view exclusively or mainly to cleaning them, perfuming them like uh, perfume, deodorants, and changing their appearance like lipstick, eyeliner, and promoting them, promoting like मॉइस्चराइज़र, जो मॉइस्चराइज़र क्रीम क्या हो रहा है, और हमारे जो अपीयरेंस है, ठीक है, हमारे स्किन को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है. जैसे आप मान लो सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो, सो वो क्या कर रहा है, वो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है, कीपिंग देम इन गुड कंडीशन लाइक मॉइस्चराइज़र क्रीम. ठीक है, मॉइस्चराइज़र क्रीम क्या है कि हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है. आप एलोवेरा जेल देख लो. और करेक्टिंग बॉडी ऑर्डर्स, इसमें क्या आ जाएगा, परफ्यूम, डिओडरेंट्स, ओके, सोप. सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स. ठीक है, जो कॉस्मेटिक है वो हम क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, क्या होता है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक है वो कई बुक्स में कई जगह अलग अलग है. ठीक है, जैसे कई में है कि बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, बेस्ड ऑन देयर यूज. ओके, या कई बुक में या कई जगह ऐसी भी है कि क्या है कि आपको डायरेक्ट 4 टाइप में वो डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो आप कुछ भी बता सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ cosmetic? So cosmetic are broadly categorized into 4 types. Okay, skin cosmetics, hair cosmetic, nail cosmetics, and cosmetic for hygiene purpose. So स्किन कॉस्मेटिक्स में आपका आ जाएगा पाउडर, कॉम्पैक्ट, क्रीम, लोशन, कलरेंट्स. पाउडर में फेस पाउडर, बॉडी पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, प्रिकली हीट पाउडर. क्रीम में कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, ऑल पर्पस क्रीम, क्लिनजिंग क्रीम. एंड लोशन में एस्ट्रीजेंट लोशन, बॉडी लोशन, एंड कलरेंट्स, लिपस्टिक, एंड आई शेडो. एंड हेयर में आपका हेयर रिमूवर, डेपिलेटर, एपिलेटर, हेयर ड्रेसिंग, शैम्पू, हेयर कंडीशनर, मास्कारा, आई लाइनर, आईब्रो पेंसिल्स. नेल्स में नेल पॉलिश, क्यूटिकल रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर. एंड हाइजीन में क्या है, एक डेंटल केयर एंड एक बाथ. डेंटल में आपका टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, डेंटिफ्राइसेस, माउथ वॉशेस. एंड बाथ में बाथ सोप, बॉडी वॉश, शॉवर जेल. ये सारे क्या हो गए आपके बाथ में आ गए, लाइक फॉर हाइजीन पर्पज. नाउ नेक्स्ट इज कॉस्मेस्यूटिकल्स. ओके, कॉस्मेस्यूटिकल है क्या, जो भी कॉस्मेटिक, ठीक है, हम बना रहे हैं, उस जो भी कॉस्मेटिक हम यूज कर रहे हैं बट उसके पास फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मेस्यूटिकल्स. द मीनिंग ऑफ कॉस्मेस्यूटिकल इज अ कॉस्मेटिक प्रिपरेशन दैट हैज अ फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी. ओके, कोई भी कॉस्मेटिक हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके पास अगर फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्मेस्यूटिकल्स. ठीक है, मीन्स जैसे सनस्क्रीन हो गया, ठीक है, वाइटनिंग क्रीम हो गई, वो सब क्या है, एक फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी है. इसमें क्या है कि एक बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि हमारे मेडिकल बेनिफिट्स देते हैं. ठीक है, जैसे सनस्क्रीन है वो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, किससे, जो यूवी रेज आ रही है. ठीक है, और जो वाइटनिंग क्रीम होते हैं वो क्या कर रही है, हमारी स्किन को
वाइट कर रही है, उसमें केजोइक एसिड जो मिला होता है वो क्या है, बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है। मीन्स क्या है कि वो आपका एक तो हम कॉस्मेटिक एज कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, और उसमें एक मेडिकल बेनिफिट्स भी है। मीन्स क्या, कॉस्मेस्यूटिकल्स मीन्स कि जिसमें कॉस्मेटिक और ड्रग दोनों प्रॉपर्टी हो, मीन्स मिक्सचर ऑफ कॉस्मेटिक और ड्रग। ओके, लाइक एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अब क्या है, आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू ही देख लो। एंटी डैंड्रफ शैम्पू में क्या है कि हमारे हेयर को क्या है, वो क्लीन कर रहा है और डैंड्रफ को ट्रीट कर रहा है। ओके, तो क्लीन कर रहा है वो एज ए कॉस्मेटिक यूज हुआ। ओके, एंड डैंड्रफ को ट्रीट कर रहा है वो एक ड्रग या मेडिकल बेनिफिट्स दे रहा है। सो उसको क्या हम बोलेंगे, कॉस्मेस्यूटिकल्स। ओके, so for example, a dandruff shampoo that is intended to clean hair and treat dandruff make it both a cosmetic and drug. And moisturizing sunscreen that is intended to be moisturize skin and protect it from sun exposure is also considered as a cosmetic and drug. Okay, so the term cosmeceutical was coined by Albert Klingman in 1993 में। जो कॉस्मेस्यूटिकल टर्म था उस किसने दिया था, अल्बर्ट क्लिंगमैन ने। किसमें, 1993 में। ओके, सो कॉस्मेस्यूटिकल आर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट विथ बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स purported to have medical benefits. Okay, clear? So next is classification of cosmeceutical. क्या है जो क्लासिफिकेशन है कॉस्मेस्यूटिकल्स का, वो कहीं भी एक्सेप्टेड नहीं है कि जो हमारा FND एक्ट है, FDNC एक्ट जो होता है, फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ना तो कॉस्मेस्यूटिकल की डिफिनीशन है उसमें और ना ही क्लासिफिकेशन है। जो क्लासिफिकेशन है वो हम जो मार्केट में प्रोडक्ट यूज हो रहा है, जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो हम यूज कर रहे हैं, उसके बेस पे कॉस्मेस्यूटिकल को क्लासिफाई किया गया है। ओके, सो देयर इज नो सिंगल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेस्यूटिकल्स. Broadly, they fall into characterized based on their chief etiological indication, that is the condition for which a person would use them. इटियोलॉजिकल क्या होता है, इटियोलॉजिकल में क्या है, किसी भी डिजीज, जो भी डिजीज के कॉज है, उस कॉज है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इटियोलॉजिकल। ठीक है, मान लो कोई भी डिजीज हमें हुई, जैसे लाइक एक्जिमा हो गया, तो उसमें मीन्स क्या है कि वो उसका कॉज क्या है, क्यों हो रहा है, तो क्या होगा, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं। अगर सारी मतलब कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो स्टडी हुई, तो उसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इटियोलॉजी। ओके, सो broadly they fall into categorized based on their chief etiological indication, that is the condition for which a person would use them. Okay, जो भी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है या जो हम यूज कर रहे हैं उसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन है कॉस्मेस्यूटिकल्स का, वो कैटेगराइज्ड है। फॉर एग्जांपल एंटी एजिंग, अब मार्केट में एंटी एजिंग क्रीम है, वो हम क्यों यूज कर रहे हैं, फॉर रिंकल्स, ट्रीटमेंट ऑफ फोटो मेलानोसिस एंड फोटो टैनिंग। ओके, फोटो मेलानोसिस पता ही है क्या होता है, क्या होता है कि इसमें हमारे जो सन से जब हम ज़्यादा सन के एक्सपोजर में होते हैं तो हमारी जो स्किन पे ब्राउन पैचेस हो जाते हैं। ओके, जिसको हम नहीं कहते हमारी स्किन जो है वो टैन हो गई है। सो आपका फोटो मेलानोसिस एंड फोटो टैनिंग क्या होगा कि हमारी स्किन पे ब्राउन पैचेस आ जाते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट्स के लिए कई क्रीम्स है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ पिगमेंटेशन रिलेटेड डिसऑर्डर लाइक मेलसामा और फ्रेकल्स। ठीक है, अब मान लो जैसे आपका
पिगमेंटेशन हो जाता है। क्या होता है कि जो हमारे हार्मोन्स है वो कभी डिसबैलेंस हो गए तो या ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस से हमारी जो स्किन है वो क्या हो जाती है, उस पर पैचेस आ जाते हैं, छोटे छोटे स्मॉल्स ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, लाइक उसको क्या बोलते हैं, फ्रैकल्स बोलते हैं। जो भी हमारे स्किन पे मान लो जैसे फेस पे ब्राउन स्मॉल स्पॉट आ जाते हैं, ओके, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैकल्स। नेक्स्ट इज रिटाइड्स, रिटाइड्स रिडक्शन, ठीक है। रिटाइड्स रिडक्शन मीन्स क्या होता है कि हमारी जो स्किन एजिंग, मान लो जैसे जो रिंकल्स हैं, ठीक है, अगर जो रिंकल्स हो रहे हैं उसको क्या रिडक्शन करने के लिए मीन्स रिड्यूस करने के लिए हम रिटाइड्स रिडक्शन प्रोडक्ट यूज करते हैं। एंटी इन्फ्लामेशन, ओके। अब क्या है, हमारी स्किन जो होती है कुछ ऐसे ही मान लो कुछ हम कॉस्मेटिक या कुछ भी हम ऐसे यूज करें जिससे हमारी स्किन रेड हो रही है या उसमें इन्फ्लामेशंस हो गए हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए भी हम एक क्रीम यूज कर रहे हैं एज ए कॉस्मेटिक, एज ए ड्रग। फैट लॉस, अब फैट लॉस में जैसे हम मान लो ग्रीन टी पी रहे हैं, ओके, ये सब क्या है, ग्रीन टी क्या हुआ, एज ए कॉस्मेटिक यूज हो रहा है एंड एज ए ड्रग। सो ये क्या है, कॉस्मेस्यूटिकल्स है। नाउ हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल prevention, maintenance of skin tone and clarity of complexions, okay. So cosmeceutical are broadly characterized into following types. First is skin cosmeceuticals. स्किन कॉस्मेस्यूटिकल्स में आपके मॉइस्चराइजर, क्रीम, सनस्क्रीन आ जाएंगे। हेयर कॉस्मेस्यूटिकल्स, हेयर कॉस्मेस्यूटिकल्स में एंटी डैंड्रफ शैम्पू, हेयर स्ट्रेटनिंग, ये सारे आ जाएंगे, ओके। अदर्स में, अदर कॉस्मेस्यूटिकल्स में जैसे आई क्रीम्स होते हैं, जैसे मान लो रिंकल्स हो गए, ठीक है, ग्रीन टी फेट लॉस के लिए ही, लिफ्टिंग, मॉइस्चराइजर क्रीम, रिंकल्स क्रीम एंड डेंटल केयर। सो thank you for watching the video. In next video we will briefly discuss about classification of cosmeceuticals. So thank you.